तू चलता चल तू चलता चल तू चलता चल. So thank you so much, Praveen. First of all, congratulations for getting this post of Sub Inspector CRPF. This is conducted by Staff Selection Commission (SSC), as far as we know. Please tell us something regarding this SSC examination, because this is a bit different. There are various stages and tiers. Can you tell us in brief about your journey? Yes, ma'am. Ma'am, thank you for calling me, inviting me, and because it is a pleasure and indeed an honor uh, to share my views with the platform of my Guru Karnal Nehru, and because I am very indebted to him, I have learned so much from him. Uh, the way I think in every aspect, in every field, he has some influence, some impact on my life, and it's very nostalgic and very uh, proud moment for me to come back and share my thing. Definitely, ma'am, like all others, I always wanted to be an officer in army, navy, air force, defense forces, attracted towards this life. So sir knows me, and I used to interact him a lot, asked him all type of questions, every doubt, stupid questions, stupid doubts, even used to give suggestions to him, and he was very kind enough to listen them very kindly and politely. Meanwhile, ma'am, I got married, and then sir said कि अभी फर्जीवाड़ा नहीं करना हमें, because in all forces unmarried अभी compulsory है. So I started looking towards other things. So meanwhile, I was also earning by giving tuitions, and this opportunity I got to know through my friend of SSC CPO exam. This is called SSC CPO exam, and in this exam, all the Central Armed Police Forces as well as Delhi Police, uh, इनके लिए SI for the post of sub inspector ये exam conduct होता है, and it is conducted in 4 stages. First stage होता है tier 1, in which there are 4 subjects, namely English, Maths, GK and Reasoning. फिर होता है physical, which is the most challenging part. Physical is challenging because 1600 meters in 6 minutes and 30 seconds, which is not that very difficult, but still challenging. Or long jump, high jump, long jump 12 feet, high jump 4 feet. So all these things and few other activities. After that, there is tier 2, which is purely of English, 200 marks English. And then there is medical and then merit list. So I got CRPF SI. So this is, ma'am, this is the journey. And about the preparation, this exam is not very difficult like CDS. It is exam of average, ma'am, average capabilities, not very much extraordinary something. And yes, physical is something. Almost 80% students who qualify for tier 1 get out in physicals. So this is something good for people like who are good in physicals and average in studies. They can easily make it through it. And this is very good exam as far as an opportunities, because adventure, lot of adventure, who want to wear uniform, and a certain degree of responsibility also there, as one get 2 star. And there is also good career prospect. Within 4 years one has the opportunity to become assistant commandant. So very good exam. Those for from coming from a weak socio-economic background, they have this very good opportunity कि हम कहीं और काम करके भी अफसर बनने को तैयार है, तो why not to get into a job in government job. इंडिया में तो बहुत इसका वो है. So and then prepare for your dream. So this is how, ma'am. Okay. So please break down for us the preparation part of physical. Then your tier 1, first of all, tier 1 must have been in general, na, everything, and then the physical. So break down for us this preparation side. Okay, ma'am. Ma'am, tier 1 is not that difficult. English is of like that of CDS level. Maths, reasoning, that too. Reasoning is what we do in
what is that test called in SSB, ma'am? I've forgotten. OIR test. OIR test, yes. OIR test level reasoning, and in maths, maths is also of CDS level. मतलब मैं एसएसबी की तैयारी बाद में मैंने जब ये एग्जाम दिया, मैंने कभी आई डिड नॉट गो फॉर कोचिंग, आई जस्ट गिव दिस एग्जाम, और ये सीडीएस की जो तैयारी करी थी, एंड सीडीएस भी आई क्लियर 2 times रिटन अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल नेहरू. So this is, I want to share one thing. SSB मैंने एक बार दिया, I got screened out. उसके बाद मैंने SSB मेरा था, मैं गया नहीं, and then I got married, and उसके बाद NFA principles जो हैं कि we don't do फर्जीवाड़ा, so I left this line, कि मुझे लगा कि अब मुझे सही चीज़ करनी है, मुझे झूठ बन के गलत करके नहीं जाना. So this is how it is. So maths, reasoning and English is all about CDS FCAT that level. Yes, little bit calculative. One must know the tricks, how to do questions fast, and all these things are very much available in the SSC syllabus. And as far as GK is concerned, in CDS, the GK is more about in UPSC in general, GK is more about overall, what we say, grasp of the thing, overall concept. But in SSC, it's more factual. The direct, more factual questions are being asked. So this is how one can prepare in tier 1. And tier जो physical है, it is all about running every day. One cannot get very fit very quickly. Then there are chances of injury. I used to run daily. That is something also under the guidance of Colonel Nehru, and I'm very much inspired by him. I want my olden days कि जब मैं when I get older, I want to be like him, एकदम fit and like him. So that is why I used to run daily. And कभी आलस होता, इंस्टाग्राम चलाते, सर के वीडियोस देखते, तो बहुत इंस्पिरेशन मिलता कि जब सर नहीं रुक रहे तो हम क्यों रुके. So this is how. So physical is all about this. और एंड आई ऑल्सो वांट टू शेयर मैम कि फिजिकल जब हुए थे दैट वाज वेरी चैलेंजिंग. मैं बीमार भी था, तो उस समय मतलब सुबह शाम दोनों टाइम बुखार की गोली लेता, लेकिन दौड़ता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 दिन बचे थे. तो वो अगेन दैट इंस्पिरेशन कम फ्रॉम कर्नल नेहरू कि ये किस तरह से वो बॉक्सिंग रिंग एनडीए के उसमें टांग के रात भर बॉक्सिंग करते रहते थे. तो इस तरह से मतलब सर का तो मेरे पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था. एंड देन टायर 2, जब मेरे टायर 1 में कम नंबर थे एंड आई वाज नॉट अबाउट टू गेट एनी ऑफ द पोस्ट, सो मुझे पता था कि मुझे टायर 2 में इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं. सो आई गेव मोर देन 40 मॉक टेस्ट. मैंने कुछ और दिया नहीं, मुझे लगा कि मेरे को नौकरी मिल सकती है तो यही मिल सकती है. तो आई गेव मोर देन 40 मॉक टेस्ट. I did not prepare from anywhere else. I did my smart study, and this inspiration again come from Colonel Nehru. How he prepared for the Staff Selection Commission exam. तो सब कह रहे थे ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो. आई रियलाइज दैट इतना पढ़ के मैं इतना सुधार नहीं कर पाऊंगा. सो आई गेव मॉक टेस्ट फॉर द टायर 2, क्योंकि मुझे पता था माई इंग्लिश इज रीजनेबली गुड. तो आई गेव मॉक टेस्ट. आई जो कंटिन्यूसली आई केप्ट रीडिंग न्यूज़पेपर. And to my delight, ma'am, I scored 175 marks out of 200 in English, Oh, that's great. which is good. So that's why I got job. Otherwise, if it has been 160 somewhere, I would have got merit out. So this is there. So whole journey was very exciting. तो एक साल तक बहुत मजा आया, मैम. This is how it is. And now I'm going for training in 4-5 days. They have called us Ajmer first. There after 1.5 months we will go to Coimbatore. 1 year training, so I'm very excited about that. And there also this Colonel Nehru inspiration will inspire me to do push me out of my limits. Yes, yes. And in brief, you have already told how Colonel Nehru and NFA helped you. So please tell us what all changes did you bring in your daily routine, getting inspiration from Nehru sir. What was your in general routine? Yes, ma'am. About Nehru sir and about NFA, I can speak at length, ma'am. Even you have to stop me. I can say, ma'am, that while I joined, ma'am, Colonel Nehru, I just want to tell my background, ma'am. The only good thing I had that I was English medium student. I'm very blessed that my parents ने मुझे English medium में पढ़ाया.
बिकॉज दिस इज समथिंग दैट मेक्स ग्रेट डिफरेंस इन इंडिया। एक जवान एक ऑफिसर के बीच में अगर मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा फर्क है तो वो इंग्लिश का है। ऑल अदर थिंग्स कैन बी कवर्ड वेरी क्विकली, बट द इंग्लिश इज समवेयर, जैसे गांव के बच्चे दे आर मोर फिजिकली कैपेबल, दे आर मोर मेच्योर, दे आर मोर हार्ड वर्किंग, बट बिकॉज ड्यू टू क्योंकि इंग्लिश नहीं आता तो दे गेट समवेयर बिहाइंड। एंड सो दिस इज आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा, एंड आई वॉज ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पर्सन हु अचीव ग्रेट थिंग इन लाइफ। मुझे हमेशा ऐसे लोग इंस्पायर करते थे। एंड वाइल गोइंग थ्रू यूट्यूब, मुझे कर्नल नेहरू सर की वीडियोस देखे एंड सर के इंस्टाग्राम पे वो कोरा पे आंसर्स पढ़े, तो आई गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड हिम। मुझे लगा कि मतलब द वे ही इज गाइडिंग दैट इज द राइट थिंग। वो एक सेंस मेरे अंदर डेवलप था कि मुझे सर की जो टीचिंग्स हैं दैट अट्रैक्टेड मी, एंड आई वांटेड a mentor like him, and I was grateful that I got. So my what was my first interaction with Colonel Nehru? Mhm. Although I did lot of interactions and I cannot forget any of them, but the first interaction was so good कि सर ने जो सर एक स्ट्रेंथ और वीकनेस लिख के देते हैं, तो द स्ट्रेंथ सर ने जो लिख के दी मुझे खुद को नहीं पता था मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है। सो आई वॉज मतलब मैं बहुत खुश हुआ उस दिन कि यार आई वॉज नॉट लुकिंग एट माई वीकनेसेस। वो भी थी कि लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ मोटिवेशन, और कई चीजें सर ने कमी लिख के दी, बट जो मुझे सर ने स्ट्रेंथ लिख के दी वो मेरा जोश ज्यादा बढ़ा कि ओके आई हैव दिस स्ट्रेंथ की एडुकेट इंग्लिश, मेच्योर, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह सर ने अपनी मुझे अपनी स्ट्रेंथ लिख के दी। तो उसके बाद आफ्टर दैट मैंने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया सर के गाइडेंस में, रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग, एंड थर्ड थिंग कि मतलब आई यूज टू स्टडी बट आई ऑल्सो स्टार्ट टीचिंग। तो दैट वाज वेरी मैम, जिसने मतलब बहुत ज़्यादा मेरी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया, बिकॉज टीचिंग डज नॉट ओनली हेल्प मी इन getting my concepts better, but also make me more confident person. I am able to communicate better, I think, because of teaching, because somewhere your mind and your what we say, what you are speaking Hmm. get in sync because of teaching. तो क्योंकि टीचिंग में भी सोच सोच के आपको थोड़ा बोलना पड़ता है बच्चों को समझाने के लिए, यू गिव एग्जाम्पल on your feet. So this is how it is. And फिर the major impact which is subtle, which cannot be seen, is that कि जो the way I take decisions, somewhere back in my mind कर्नल नेहरू सर की टीचिंग्स होती हैं, भले ही वो सर के जो प्रिंसिपल्स हैं, namely that Japanese principle, I have this bad habit of forgetting names of the things. Tori Kaizen, 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 क्या काय हाँ Kaizen, Kaizen, and about 80-20 rule, हाँ 80-20 rule. These things are always behind in mind. And other things also कि जो टाइम मैनेजमेंट है तो वो ध्यान में आ जाता है कि कैसे करना है, कि उसमें बहुत ज्यादा रटने की मैं रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो बुक वो दिमाग में देखते ही घुस गया कि जो बहुत काम की इंपॉर्टेंट चीज है, जो लॉन्ग टर्म में काम आएंगी, वो चीज़ों में ज़्यादा टाइम देना है, इन्वेस्ट करना है, बजाय उनको कि जो इमरजेंसी तो है, जो क्वाड्रेंट सेकंड में है कि जो इमरजेंसी है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, इस तरह से जो भी हैं वो ऑल दीज थिंग्स आर इन माइंड। तो अबाउट टाइम मैनेजमेंट हो गया, या और भी जो चीज़ हुई कि रेशनल थिंकिंग। और सर मुझे काफ़ी इस चीज़ के लिए कहते भी थे बार बार कि तेरी रीजनिंग एबिलिटी तो अच्छी है, रीजनिंग एबिलिटी तेरी अच्छी है। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट मतलब मोटिवेटेड मी। मैंने मतलब सर से सीखा भी, लेकिन सर ने जो मेरी तारीफ करी उसको मैंने भी दिमाग में रख लिया कि मेरी ये चीज़ तो अच्छी है ही है। सर ने कह दिया तो मतलब ये आई एम गुड इन दिस। और उसके अलावा मैम उसके अलावा यही सर से सीखा है कि कभी डरना नहीं। कर्नल नेहरू सर से यही सीखा। मैम कुछ चीजें होती हैं, जरूरी नहीं कि सर आपको सब कुछ सिखाएं, यू लर्न बाय सीइंग हिम। मतलब व्हेन आई यूज्ड टू टॉक विद सर, सर का मतलब सर एक्सरसाइज करते और सर का कुछ ना कुछ दुखता ही रहता था, बट स्टिल ही मतलब वो करते थे। तो दिस इज समथिंग इंस्पायरिंग। अभी भी कनाडा में भी सर जीत रहे हैं, आई सी ऑन इंस्टाग्राम। सो ये सब चीजें इंस्पायर करती हैं कि दिस मैन इज नॉट स्टॉपिंग, देन हाउ वी कैन स्टॉप।
हमने भी वही टीचिंग ली है. So this is all, ma'am. I have learned lot, ma'am, lot. I am very indebted to Colonel Nehru because he has shown me, he has taught me a way to live life. और मुझे मैम आई डिड नॉट गिव एसएसबी बिकॉज जो भी रीजन रहे, पर मुझे लगता है अगर मैं एसएसबी देता तो 3-4 एसएसबी में मैं रिकमेंड तो हो जाता. So this is believe I have wrong or right, I don't know, but this is, I think, ma'am, this kind of confidence I have because of Colonel Nehru. Okay, thank you. With that note, I'll give this to straight to Colonel Nehru without wasting time. Yes, ma'am. नेहरू के पास तो लास्ट छोड़ा ही कहाँ तुमने? I think. Praveen, firstly, it's so very satisfying that I remember all the interactions we had. And I also remember the advice you have been giving me. You've been very frank. And I have always liked frank interactions. And this kind of communication I have been having even with my own 2IC in battalion. जिसने मुझसे क्या कहते हैं तीसरे दिन में मेरे से कहा था कि इंटरव्यू में आके मुझसे ऑफिस में बात की थी कि सर आप मुझे पोस्ट आउट करा दो क्योंकि आपकी मेरी बनने वाली है नहीं और मेरा नुकसान होगा, ना उसमें मेरा फायदा होगा ना बटालियन का होगा. एंड आई टोल्ड हिम कि यार अजय एक बात बता, तू मेरी डाउट करता है मेरी लॉयल्टी बटालियन के लिए? कहने का नहीं सर आप तो लॉयल हो. तो मैंने कहा यू थिंक आई विल बी वर्किंग सिंसियरली टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ 23 पंजाब? ही सेड यस सर. मैंने कहा क्या तू अपनी डाउट करता है? कहने का नहीं सर अपना भी डाउट नहीं करता. मैंने कहा फिर तेरे मेरे में कोई झगड़ा नहीं होता. And our aims are clear. Personality differences you are feeling, that you are having differences. Actually, differences are always good. और तू मेरे को जितने भी तुझे चीजें ठीक ना लगे ना ओपनली मुझे बोलना, आई विल एक्सेप्ट. और नहीं तो आई विल ट्राई टू कन्विंस यू. आइदर यू गेट कन्विंस्ड और आई गेट कन्विंस्ड. डिफरेंसेस आर गुड. हमारा झगड़ा नहीं होने वाला, जस्ट डोंट वरी. एंड आई विल टेल यू टिल डेट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. वी आर वेरी क्लोज. अभी भी है. वो कोविड में मरते मरते बचा, मैं खुद बचा था. उसका मेरे से भी ज्यादा बुरा हाल हुआ था. एंड जब वो कोविड में था, आई यूज्ड टू कीप स्पीकिंग टू हिम. So he used to be very energized कि CEO का कॉल आ गया. It was still that relation हमारा CO to IC वाला था even when he was in that. Anyway, तो ये चीजें चलती रहती हैं प्रवीण. So it has been a very great interaction with you. I have learned a lot, like I learned from my 2IC, and you have been a sincere person. थोड़ा और भी पुश करने की जरूरत है. That you should do. ठीक है ना? थोड़ा बहुत आप वो हो जाते हो sometimes, you know, easy going and all that. और तुम 6.5 मिनट को बोल रहे हो 1 माइल भागना 6.5 मिनट से टफ. व्हाट यू वांट 6.5 मिनट इज नॉट अ टफ टाइम. 6.5 में 6 मिनट तो मैं यार उसमें 10वीं 11वीं में भाग लेता था यार. Yes, ठीक है sir. ना? ठीक है. तो इट्स नॉट बिकॉज यू सी जवान का भर्ती हम 545 रखते हैं यार. और अपनी बेल्ट में वेस्टर्न यूपी में भैया 5.5 से नीचे वाले का नहीं होता सिलेक्शन. 5.5 से नीचे जो आ रहा है ना वही आ पाता है. 5:45 वाला नहीं होता तो भीड़ में फंस के रह जाता है. Yes, yes, sir. तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर दैट यू हैव टू डेवलप. ठीक है. व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क यू is you kindly share the journey of self-improvement. What realizations came to you? How you focused on various facets of your personality and how you gradually improved. They would be of lot of relevance to our students because you were our student for a considerably long time, which I mean people will not know. You and I understand that. अब हमारी कितनी बातचीत होती रही है वो which is not known. ठीक है ना? And how, what was the role, how you utilize your group activities, you know? इसमें थोड़ा लाइट डालिए, that would be good. Yes, sir. सर स्टार्टिंग विथ जो सेल्फ कॉन्सेप्ट का होता है, दैट वाज समथिंग कि एक ऑफिसर बनना है तो एक जोश तो उसी से आ गया था कि सेल्फ कॉन्सेप्ट मस्ट बी कि डिसिप्लिन होना है, अपने अपने आप को नॉलेजफुल करना है, जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको ढंग से करना है. जो आपका द कोर फोकस ऑफ योर टीचिंग इज कि जो काम कर रहे हो दैट मस्ट बी डन इन अ वेरी गुड मैनर, कि वो इतना अच्छा करो कि उससे ही आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी. तो दैट वाज माय कोर फोकस कि अपना जो भी दिन का काम है थोड़ा घर पे जो हेल्प करना है, और बस इन्हीं काम को मैनेज करना
all about time management. एंड जो ग्रुप एक्टिविटीज थी दे आर ऑफ ग्रेट हेल्प सर. फर्स्ट ऑफ ऑल इतना इंग्लिश कंटिन्यूअसली कहीं बोलने का मौका मिलता नहीं है, सो देयर वी यूज टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. सो स्पेशली मैं कॉलेज गया नहीं हूँ, आई वॉज नॉन कॉलेजिएट. तो फॉर मी इंटरेक्टिंग विद एंड जो स्टूडेंट्स आते थे यार, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल, दे आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, दे आर वेरी गुड स्टूडेंट. तो उनसे नॉट ओनली आई लर्न न्यू वर्ड्स, द वे दे स्पीक, दे स्पोक, their tone, the way they pronounce the words, everything I learned from them, as well as new ideas came from them. So all these sorry, I did this activity for about 3 to 4 months. So and I also improved the writing part also, because आपको भी मैं लिखता था. I discontinued that thing after a time, but मैं काफी आपको लिखे ऐसे, ज्यादा भी नहीं तो 10-15 ऐसे लिखे. सो ऑल्सो दैट हेल्प. और ये ग्रुप एक्टिविटीज में भी जब हम कुछ लिखते हैं तो वो भी हेल्प करता है कि 2 मिनट के अंदर आप लिख रहे हो. तो आई यूज टू सी, मेरा फोकस रहता था कि स्टोरी तो मैं ठीक लिख रहा हूँ, मेरी इंग्लिश ठीक है कि नहीं. मैं जो ग्रामेटिकली, क्योंकि आपको भी एलर्जी होती है जो इंग्लिश नहीं अच्छा लिखते, नहीं बोलते, तो दैट थिंग वाज आल्सो माइंड कि मतलब कि इंग्लिश तो कम से कम अच्छी होनी चाहिए. सो और मतलब आप ही का वो क्या कहते हैं इम्पैक्ट था सर कि मैंने मास्टर्स की इंग्लिश से, और मैं मास्टर्स हूँ, मतलब मेरी एमए हो चुकी है और अच्छे मार्क्स से मैंने की है. तो मैंने यही सोचा था कि कर्नल नेहरू की तरह एनडी नहीं ज्वाइन कर पाया तो मैं भी इंग्लिश लिटरेचर से टीचर बन जाऊंगा. साथ साथ में ट्यूशन भी पढ़ा रहा था, यहाँ डेकेथलॉन में भी काम करने की सोच रहा था, क्योंकि एक चीज दिमाग में मुझे घुस गई थी कि जो नॉर्थ का कल्चर है कि बैठ के तैयारी करो, वो मुझे नहीं करनी. आई एम नॉट दैट एक्टिव कि सर की तरह मैं नहीं हूँ कि बहुत ज्यादा मेहनती हूँ. आई एम अ लेजी पर्सन. बट मुझे ये समझ में आ गया था कि स्लो एंड स्टेडी आई कैन, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा मेहनत तो करूँ, मैं कुछ पैसे कमाऊं, मैं कुछ तो करूँ. ये जो मोटी सी चीज थी सर की, वो मुझे समझ में आ गई थी. मुझे लगा अगर मैं ये चीजें करूंगा, यही तो टीचिंग है. दिस इज ऑल अबाउट एसएसबी, आर्मी ऑफिसर, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है. इसमें लोग पैसे के लिए जाते हैं, पैसा तो प्राइवेट में ज्यादा है, वो पैसा तो कोई चीज ही नहीं है. इट्स ऑल अबाउट एसएसबी फॉर मोर. आई डेफिनेटली रिक्वायर्ड मनी, आई कम फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, लेकिन मेरे को कभी पैसे के लिए नहीं था. मुझे लगता था प्राइवेट में पैसा मैं ज्यादा कमा लूंगा, कुछ भी काम करूंगा 10-15 साल अगर कंटिन्यूअसली आई विल डू समथिंग, आई विल अर्न लॉट ऑफ मनी. बट द मेन माई फोकस वॉज कि मैं एसएसबी क्लियर कर सकता हूँ. अंदर एक ये जज्बा था कि ये जो इसको इतना बहुत बड़ा बताते हैं कि एसएसबी ऐसा है, एसएसबी वैसा है. व्हेन आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद पीपल हु गेट रिकमेंडेड और उनके इंटरव्यूज में देखता था, तब अंदर से एक जोश आता था कि ये मैं कर सकता हूँ. और जब भी सर से इंटरेक्ट करता, सर भी बहुत पॉजिटिवली, जैसे अभी भी सर ने बताया कि तुम थोड़ा और अपने आप को पुश करो, ये हमेशा कहते थे. और ये मुझे भी रियलाइज होता है और अभी भी लगता है कि एक कॉम्प्लिसेंसी है मेरे अंदर कि मैं रिलैक्स हो जाता हूँ. शायद इसलिए मैं स्क्रीन आउट भी हो गया था कि मैंने ज्यादा वो अपना नहीं किया, मतलब ऐसे कि ठीक है इस तरह से. तो दैट इज अ वीकनेस, बट दिस इज इन माई माइंड. और सर ने कह रखा है कि अगर आप अपनी कमी मान लेते हो तो 50% वो वहीं पे सुधर जाती है, तो 50% और पता नहीं कब सुधरेगी. बट आई विल कीप वर्किंग ऑन इट सर. तो ये चीज है. एंड सेकेंड थिंग इज कि मतलब मुझे तो लगता है कि सर इंटरेक्शन जो ये होता है हमारा, मतलब बच्चे सर से जुड़ने के बाद भी, जो बच्चे रिकमेंड होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो एक्चुअली दे आर ऑलवेज मतलब सही रास्ते पे होते हैं, और ये बच्चे भी इंस्पायर करते हैं. अपार्ट फ्रॉम कर्नल नेहरू, ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव गॉट सिलेक्टेड, मैं उनके सबके इंटरव्यूज देखता था और वो सब मुझे इतने अच्छे लगते थे. मुझे ऐसे लगता था अगर ये काश मेरे मतलब कॉलेज में, स्कूल में ऐसे बच्चे अगर साथ हो जाएं तो मतलब आदमी क्या नहीं कर सकता. उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, द वे, द काइंड ऑफ पर्सन दे आर, इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे लोग, आई हैव नेवर सीन सच पीपल. और तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगा मतलब उन स्टूडेंट्स को कि जो सर के अंडर गाइडेंस में है, लेकिन दे आर हैविंग डाउट्स अबाउट हिज टीचिंग, और दे आर हैविंग डाउट्स अबाउट द मेथडोलॉजी. तो देन यू शुड नॉट बी हेयर इन द फर्स्ट प्लेस. क्योंकि अगर आपको सर से इंटरेक्ट करने के बाद, सर की चीजें पढ़ने के बाद, मटेरियल पढ़ने के बाद अगर आपको डाउट है, तो आपको फिर समझ में आया ही नहीं और आएगा भी नहीं कभी भी. तो बेटर है कि आप जो सर कह रहे हैं उससे समझें, उसे मोटे तौर पे समझें कि बेसिक कहना क्या चाहते हैं. सर का जो एक जीने का तरीका बता रहे हैं सर, दैट इज द थिंग. सर चाहे कितना ही, क्योंकि ग्रुप में भी होता था, व्हाइल वी वर डूइंग एक्टिविटीज, सही लोग सही करते थे, लेकिन सम पीपल वर वो भूल जाते थे एनएफए प्रिंसिपल्स को.
दे जो सर ने स्क्रीनिंग पे भी वीडियो बना रखी है, सर ने ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आज सर को 2014 से सर आपका चल रहा है सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 12। करेक्ट करेक्ट। हाँ, 2013 एंड से स्टार्ट किया। तो सर आपकी इतनी वीडियोज़ हैं, इतनी मतलब रिपीटेड टॉपिक्स, हर टॉपिक पे रिपीटेड वीडियोज़ हैं। फिर भी इतना सब देखने के बाद, इतना सब पढ़ने के बाद भी ग्रुप एक्टिविटीज़ में वही गलतियाँ हो रही हैं, वही बच्चे कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी सैड। तो पर मैंने कभी गलती नहीं की सर। मैं हमेशा देखता था कि चाहे मैं बच्चों में पीछे रह जाऊँ, चाहे मैं कमज़ोर रहूँ, लेकिन मैं कम से कम सही रहूँ, एंड दैट हैज़ हेल्प्ड मी लॉट। सो पर्सनैलिटी में इन्हीं सब चीज़ों से सर इम्प्रूवमेंट आया है, ओवरनाइट चेंज तो आता नहीं है सर। सबल मैनर में आया है। इनफैक्ट मैंने कभी घरवालों को नहीं कहा, घरवालों ने मुझे कहा है कि जब से तूने, उनको पता नहीं मैं नेहरू सर के साथ करता क्या हूँ, मतलब एसएसबी वगैरह वो नहीं समझते। लेकिन उनको ये समझ में आता है कि वो जब से तू कर्नल सर की ले रहा है, वो काफ़ी मतलब सुधर गया है, रिस्पॉन्सिबल हो गया है। एक सोसाइटी में इज़्ज़त हो गई है कि ये बच्चा मतलब दोनों टाइम दौड़ता है, खेलता भी है, पढ़ता भी है और अब नौकरी भी लग गया। तो मतलब नॉर्थ इंडिया ब्लैक उसकी बता रहा हूँ सर, अपर मिडिल क्लास में ये सब चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होती, वो लोगों का एक रूटीन होता है। लेकिन गाँव वगैरह में इस तरह से कि ये हर चीज़ करता है, हर जगह है, इसका व्यवहार भी अच्छा है और शादी होने के बाद भी द वे ही इज़ बैलेंस्ड हिमसेल्फ, तो वो सर इसीलिए कर पाया बिकॉज़ एक इंस्पिरेशन थी, टीचिंग थी। तो इसीलिए मेरी पर्सनैलिटी पे तो सर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। और मैं मतलब जो है ऐसा भी नहीं कि सर वो जिसे कहते हैं अंधभक्त हूँ। मतलब द काइंड इज़ कि मुझे मतलब आपकी पर्सनैलिटी द वे, वो एक आपका डिसीज़न मेकिंग, वो कि डिसीज़न मेकिंग कैसे करनी है, कि डेलीगेट कैसे करना है काम को। हम लीडर नहीं है, लेकिन दूसरों को देख-देख के हमने सीखा है। तो जैसे आपसे सीखा है वैसे ही मैं औरों से भी सीखता हूँ, कि जो हमसे अच्छे हैं। जैसे मैं सीकर गया था मेरे मौसी के पास, तो वहाँ 1-2 मैंने एक सर से मैथ्स की क्लास ली थी। तो द वे ही यूज्ड टू टीच फॉर 14 आवर्स, उनका जो डेडिकेशन था, वो देख के मज़ा आ जाता था। यार टीचर हो तो ऐसा हो। तो मुझे भी ऐसा होता है कि मुझे ये नहीं होता कि कई लोग कहते हैं सब इंस्पेक्टर बना है, असिस्टेंट कमांडेंट वो होता है, ये होता है। मैंने कहा कि मैं बना हूँ, मुझे मौका मिला है, अब मैं जाऊँगा, मैं अच्छे से मेरा जो काम है उसे बढ़िया तरीके से करूँगा, अच्छे से अपनी ट्रेनिंग करूँगा, अच्छे से जो भी एनएसजी वगैरह कोर्सेज़ मौका मिलेगा वो करूँगा। असिस्टेंट कमांडेंट का जब एग्ज़ाम आएगा 3-4 साल डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, उसमें अच्छा करूँगा। दिस इज़ अ प्लान। अब जो होगा वो तो दैट इज़ लाइफ़। पर अच्छा ही होगा, अगर इस माइंडसेट के साथ चलूँगा तो आई एम वेरी, वेरी कॉन्फिडेंट कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। सो दिस इज़ व्हाट सर मेरा आंसर है। पता नहीं मैं किस डायरेक्शन में चला गया, बट दिस इज़ व्हाट माय आंसर इज़ सर। Thank you very much for sharing your views. Now, I don't have anything more to ask you. You are open to questions from the students.